नमस्कार, फेलिसिटी टीवी में आपका स्वागत है। 2 महीने से सारी दुनिया कोरोना के लिए चिल्ला रही है और चीन अपने एक्सपेंशन के लिए चिल्ला रहा है। चीन सोचता है जब दुनिया कोरोना से लड़ रही होगी तो मैं दुनिया पर छाने के लिए कुछ करूँगा। इसकी उसने पहले ही अपनी स्ट्रेटजीज बना रखी है। हमें सबसे पहले ये पता करना है अपने आप से कि हम डरपोक हैं या कुछ सामने वाले को उत्तर भी दे सकते हैं। डरपोक इन द सेंस कि चाइना पिछले 15-20 साल से रोज हमें धमकाता है और लगातार हमारे देश में इंपोर्ट अपना बढ़ा रहा है। रोज नई शर्त रखता है और उसी आड़ में $5-7 बिलियन का इंपोर्ट बढ़ जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हमारे देश की जो लीडरशिप है वो इतनी कमज़ोर है कि चाइना को जवाब नहीं दे सकती? आज की तारीख में जब इंडिया को अमेरिका का सपोर्ट है, रसिया का सपोर्ट है, तमाम बड़ी पावर्स का 5 सुपर पावर्स का सपोर्ट है। Developments on the LAC Act conveyed last week that our troops have taken a very responsible approach towards border management and strictly follow the procedures laid out in various bilateral agreements and protocols with China to resolve any issue that may arise in the border areas. The two sides have established mechanisms both at military and diplomatic levels to resolve situations which may arise in border areas peacefully through dialogue. We continue to remain engaged through these channels. India is committed to the objective of maintenance of peace and tranquility in the border areas with China, and our armed forces scrupulously follow the consensus reached by our leaders and the guidance provided. At the same time, we remain firm in our resolve to ensuring India's sovereignty and national security. How did India react to the recent statement from the US President? President Trump said that US has informed both India and China that is ready to intervene had India asked the US for mediation and shared developments at the LAC with the US government. See, as I have told you, we are engaged with the Chinese side to peacefully resolve. The world is now suffering as a result of the malfeasance of the Chinese government. China's cover-up of the Wuhan virus allowed the disease to spread all over the world, instigating a global pandemic that has cost more than 100,000 American lives. China raided our factories, offshored our jobs, gutted our industries, stole our intellectual property, and violated their commitments under the World Trade Organization. And they broke their word to the world on ensuring the autonomy of Hong Kong. The United States wants an open and constructive relationship with China. The Chinese government has continually violated its promises to us and so many other nations. China has total control over the World Health Organization, despite only paying $40 million per year compared to what the United States has been paying, which is approximately $450. तो इंडिया क्यों घबरा रहा है और चाइना क्यों हम पर ताकत दिखाना चाहता है? कारण है, चाइना ने पिछले 10 साल में हमारे चारों तरफ पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल में ऐसे कुछ अपने सैन्य अड्डे स्थापित कर लिए हैं या उनको हमारे खिलाफ भड़का दिया है कि जब चाइना हम पर हमला करेगा तो ये देश भी हमारे खिलाफ हो जाएंगे। पाकिस्तान तो पहले ही खिलाफ है। आजकल उनका नया पॉइंट नेपाल में है। नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी को भड़काते हैं भारत के खिलाफ में। और इस चाइना ने नई शर्त रख दी कि या तो भारत BRI समझौते पर दस्तखत करे। BRI समझौता है जो पाकिस्तान से निकलकर सड़क सारी दुनिया में जाती है। चीन जिसको ले जा रहा है अपने माल को ट्रांसफर करने के लिए अलग अलग देशों में सरफेस से। और नहीं तो यदि हम BRI पे समझौता नहीं करते तो चीन हम पर हमला कर देगा। तो हमारा मानना है हमको भी कुछ शर्तें रखनी चाहिए। भारत
चाइना से हर साल 62 बिलियन डॉलर मतलब 62 अरब डॉलर का इंपोर्ट करता है, जबकि एक्सपोर्ट सिर्फ 10 अरब डॉलर का करता है। अर्थात 52 अरब डॉलर का हर साल चाइना का प्लस ट्रेड हो जाता है, जिसका मुनाफा चाइना अपने हथियार बनाने में कर रहा है और हमारे दुश्मनों को मदद करने में कर रहा है। आज यदि पाकिस्तान बोलता है तो चाइना के इशारे पर बोलता है, नेपाल बोलता है तो चाइना के इशारे पर बोलता है, श्रीलंका आंखें दिखाता है तो चाइना के इशारे पर दिखाता है, और हम सबकी री करते हैं। हम खुलकर अमेरिका के लिए एक वर्ड नहीं कह सकते कि हम अमेरिका को सपोर्ट करते हैं या इजराइल को सपोर्ट करते हैं। पता नहीं क्यों, कौन सी नीति है ये? डरने वाली नीति मेरे ख्याल से हमें त्याग देनी चाहिए। चाइना हम पर क्यों हमला करना चाहता है? इसमें एक सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि कोरोना के होने से दुनिया भर में जो चाइना के खिलाफ माहौल बन रहा है उसको युद्ध में परिवर्तित कर दो। लोग कोरोना को छोड़कर युद्ध की बातें करने लगेंगे, कोरोना भूल जाएंगे और चाइना की इमेज फिर वो अपने हथकंडे लगा लगा कर अच्छी बनाने की कोशिश करेगा। इसी क्रम में चाइना ने कार्य करना भी शुरू कर दिया है। अब से 5-7 साल पहले उसने रेनबैक्सी जैसी कंपनी की डुप्लीकेट दवाई बनाकर सारे वर्ल्ड में बेची। WHO को उसने एक तरह से अधिग्रहण कर लिया, जिससे आज मजबूरन अमेरिका को भी WHO से बाहर होना पड़ा। भारत पर हमला क्यों करना चाहता है कि भारत अमेरिका से दूर है, अमेरिका इतनी जल्दी इंडिया को सहायता नहीं पहुंचा सकता, जबकि चाइना एक साथ 3 फ्रंट खोल सकता है, पाकिस्तान, नेपाल और चाइना का। चाइना सोचता है कि हम अपनी मिलिट्री के दम पर भारत से युद्ध जीत जाएंगे और भारत की काफ़ी सारी ज़मीन कब्जा कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत की भी 4थे नंबर की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर इंडिया में है और चाइना यदि हमसे लड़ेगा तो उसके साथ साथ ही जापान भी चाइना पर हमला करेगा, ऑस्ट्रेलिया भी चाइना पर हमला करेगा, ताइवान भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देगा और सबसे बड़ी बात तिब्बत भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देगा, जिसमें चाइना कभी भी विदेशी पत्रकार तक को नहीं जाने देता और वहाँ पर लगातार क्रूरता कर रहा है। रोज वो मुसलमानों को, उइगर मुसलमान कोरोना के माध्यम से चाइना ने खत्म कर दिए। तो हमें ये सोचना है कि हम अपने दोस्तों के साथ पक्के रहें और चाइना का मुकाबला करें, अन्यथा चाइना बार बार प्रेशर डालता है। जैसे 200 साल पहले अंग्रेजों ने बड़ी बड़ी मिल्स लगाई और ज़बरदस्ती भारत में अपना सामान बेचना शुरू कर दिया था। आज चाइना वो 200 साल पुरानी पॉलिसी लगाना चाहता है कि आप इंपोर्ट करो हमसे, अदरवाइज तो हम लड़ाई करेंगे। अरे भैया, हमारी मर्जी है, हमारे दुश्मन है। ठीक है, 2 रुपये महंगा मिल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। चाइना एक तरह से साइकोलॉजिकल वारफेयर कर रहा है। उसने कई वायरल वीडियो बनाए और भारत में सर्कुलेट करा दिए कि हमने इंडिया के कुछ सैनिक पकड़ लिए और उनको तरह तरह से सता रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। ये सब सारे वीडियो झूठे हैं और भारत अपने दम पर, भारत ने भी इसकी 3400 किलोमीटर लंबी सीमा के अगेंस्ट में अपनी सेना तैनात करना शुरू कर दिया है और हमें उम्मीद है भारत जरूर इस युद्ध को जीतेगा। अब ये मत है कि चाइना के साथ युद्ध होगा या नहीं होगा। 2 बातें हैं। चाइना ने जिस तरह से अमेरिका को की आंखों में चुभना शुरू किया है, एक जब हांगकांग में दंगे हुए तो चाइना ने
यूएसए में, वाशिंगटन में, उसके 40 शहरों में दंगे करा दिए, दिखा दिया कि हमारे भी कुछ ताकत है। नंबर 2, क्योंकि यूएसए, अमेरिका चाइना का सबसे बड़ा दुश्मन है, इसलिए सबसे ज़्यादा कोरोना अमेरिका में ही फैला गया है। ये भी एक सच है। अमेरिका में अब तक 1 लाख से ज़्यादा आदमी मर गए और अमेरिका चाहेगा कि इस बात का जवाब चाइना को ज़रूर मिलना चाहिए। और ये अच्छा टाइम है कि भारत को अमेरिका का सपोर्ट लेना चाहिए और चाइना से युद्ध करना चाहिए, और सारा देश इस मामले में इंडिया के सेना के साथ में खड़ा हुआ है। और यदि चाइना की ये गलतफहमी है कि इंडिया के दोस्त दूर हैं, तो यदि चाइना पाकिस्तान को हमारे खिलाफ ला सकता है, तो चाइना के खिलाफ भी इंडोनेशिया, फिलीपींस, ताइवान, जापान और करीब 11 देश हैं, क्योंकि चाइना का सबके साथ में बॉर्डर डिस्प्यूट है और टाइम टू टाइम वो एक एक करके सबको धमकाता है। इन सब जो जितने चाइना के दुश्मन हैं, यदि सारे एक साथ हो जाए तो चाइना की कभी भी हिम्मत नहीं पड़ेगी कि वो किसी के खिलाफ कुछ भी बोले। हम तो कहते हैं जैसे यूएस में क्या सिस्टम है, यूएस में भी हमारी तरह ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है जहाँ फैसले काफ़ी देर से लिए जाते हैं। चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिज्म है, वहाँ पे बॉस ने एक बात कही और नेक्स्ट डे वो इम्प्लीमेंट हो जाती है। इंडिया की तरह और अमेरिका की तरह नहीं कि एक फैसले को लेने में एक ने कहा, उस पर दूसरा स्टैंप लगाएगा, तीसरी जगह जाएगा, 10वीं जगह जाएगा, और उस सिस्टम में करीब 2 महीने लग जाएंगे जब तक वो फैसला अडॉप्ट होता है। अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज ट्रंप ने बोला है कि हम चाइना के सभी छात्रों का जो शोध करने आते हैं और चाइना को फ़ायदा पता है, उनको आना बंद करेंगे। यदि ये काम आज से 5 साल पहले हो जाता, 4 साल पहले हो जाता, तो चाइना में इतनी पावर नहीं होती। अभी भी हो गया तो बहुत ठीक है। और इन सब देशों को मिल के चाइना की सोशल डिस्टेंसिंग करनी चाहिए, जिससे चाइना को अपनी औकात का पता लग जाए। थैंक यू, धन्यवाद।